Hello and welcome to the new class of quantum chemistry. In this class, we are going to learn simply the postulates of quantum mechanics. Now, what is meant by postulate? Postulates are those which are considered to explain the quantum properties. Means what? Now, whenever we have these postulates of our quantum mechanics to explain this quantum chemistry, we need we need operators, and whatever the information regarding these operators is there, for that purpose we have some postulates, and those postulates we are going to learn in this class. Now, to explain all these postulates, you may ask me, ma'am, how many postulates are there? Is there any fixed number of postulates are there, or are they important for us to learn quantum chemistry? So its answer is yes, there are six postulates, and those are very, very important to learn your quantum chemistry. Now, to explain all these things, I'm sharing with you simply some slides to be clear with to clear you guys. So wait till I'm loading this slide. So whatever this our quantum is there, this quantum chemistry is explaining us the simply it is explaining us the total six postulates. Now, what is mean by postulate? As just now we have discussed. So, whatever the quantum chemistry is there, to explain this quantum chemistry, we are using these postulates, or you can say the framework of a quantum mechanics. What is mean by these postulates, or what are these postulates? तो उसका आंसर क्या होगा? These postulates are nothing but the framework of quantum mechanics. Then, how many postulates are there? There are six postulates, as I told you just now. Again, we have here, there are six postulates, and whatever these postulates are there, these postulates, for these postulates, there is no exception. There is no exception until now. मतलब आज तक इन postulates को कोई भी exception नहीं आया है. मतलब सारे के सारे जो कुछ भी आपके मैटर होते हैं, उनका स्पेसिफिकली क्वांटम के बारे में जब आप इंफॉर्मेशन देते हो, या फिर क्वांटम केमिस्ट्री के बारे में जब आप बात करते हो, तब हम उनका जो कुछ भी नेचर कंसिडर करते हैं, वो नेचर होता है वेव नेचर. विच नेचर? वेव नेचर. एंड whenever you are using this wave nature, at that time, whatever these postulates are there, these every wave nature is following your postulates of quantum chemistry. Now, in this topic, we are learning simply the all the postulates. Now, what are those postulates? Are they important for us? As you know very well, till now, these postulates are very, very important, because on to these postulates you can be able to understand the points which are explained on the basis of on the in the sorry in the quantum chemistry. Okay, now let me start with the postulates. But again, before starting the postulates, I would like to explain you guys some things. And what are those things that I'm sharing with you on whiteboard, that I mean that I'm going to explain you on whiteboard. Some things only, but it is very, very important to before going towards anything. Okay, so whenever you are discussing about the postulates, at that time what happens? At that time, simply जो कुछ भी postulates होते हैं, वो postulates मतलब कि हमने अभी अभी देखा है, हमने अभी अभी बोला है, how many postulates we have, how many, what we are learning, postulates, what we are learning, postulates. So ये जो कुछ भी अब postulates है, तो ये postulates कितने postulates हैं हमारे पास? So simply there should not be any confusion. How many postulates we have, my dear students? We have, no doubt,
we have six postulates, and those postulates are nothing but which are related with different things. Now you may ask me, ma'am, different things मतलब क्या? मतलब कि सिंपली हर एक पॉस्टुलेट आप लोगों को डिफरेंट टाइप की, या फिर डिफरेंट मतलब मुझे बोलना है कि जो कुछ भी आपका मैटर होता है, उसकी जो वेव होती है, उसका जो नेचर होता है, उसका जो इंफॉर्मेशन, आई मीन टू से उसकी जो इंफॉर्मेशन होती है, वो हर एक इंफॉर्मेशन आपको ये साइ देना चाहिए। और ये जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होती है, तो ये इंफॉर्मेशन आप रिप्रेजेंट कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ साइ, ऑन द बेसिस एक नोटेशन आप यूज करते हो। और वो जो कुछ भी नोटेशन है, तो वो नोटेशन इज नथिंग बट, दैट नोटेशन is nothing but simply psi. What is that notation, guys? Psi is that notation. So what is that notation, guys? For the explanation of this partial representing its a function psi by using what beta? Psi. This psi is there. Now you should not be confused with this psi. Psi's spelling is, if you are going into the literature and you will find over there psi means psi, police psi nahi. Here your p is silent. I, what is that, guys? Wave function. क्या है psi? Wave nothing but a wave function. This I. Now what about our now? ये जो कुछ भी psi होता है, मतलब कि वो जो कुछ भी वेव है, तो वो वेव कहाँ पर कैसे मिलती है, मतलब वो अब उसकी प्रोबेबिलिटी उस मिलेगी, उसकी जो कुछ भी पॉसिबिलिटी है, उसको हम एक वर्ड देते हैं, स्टैंडर्ड वर्ड मैथमेटिक्स में देते हैं, तो उसका नाम है, या फिर हम क्वांटम में भी बोल सकते हैं। आप मैथमेटिक्स वर्ड आने की वजह से कंफ्यूज मत हो। हाँ, तो अब ये जो कुछ भी आपका साई स्क्वायर है, क्या है बेटा? साई स्क्वायर है। तो साई स्क्वायर इज नथिंग बट देन फंक्शन डेंसिटी। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, कुछ भी कंफ्यूज हो रहा है तो रिकॉर्डिंग को स्टॉप कीजिए और पीछे जाके और एक बार देखिए, क्योंकि आप लोगों को एक बार कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो वहीं के वहीं क्लियर कर दीजिए, क्योंकि ये है क्वांटम, और क्वांटम होता है बाप फिजिकल केमिस्ट्री का। बट आप लोगों को डरना बिल्कुल भी नहीं है, आप जब स्टेप वाइज जाते हो ना, तो कुछ भी गलती नहीं होती है। नाउ अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, अब आप लोग मुझे पूछोगे, मैम ठीक है, ये तो सारा आप बोल रहे हो, बेसिक है, ये है वो है, बट एक्चुअली पोस्टुलेट क्या होते हैं मैडम आपके, हमारे इस क्वांटम मैकेनिक्स के? तो बोलती हूँ, बोल ही रही हूँ। बट अब ये जो कुछ भी आपकी वेव होती है, हाँ, तो पहला पोस्टुलेट, कोई कौन से नंबर का पोस्टुलेट? पहले नंबर का जो कुछ भी पोस्टुलेट है हमारा, तो ये पहले नंबर, ये सारा मैंने बहुत अच्छे अच्छे पीपीटीज बनाए हैं, बहुत अच्छे अच्छे रेफरेंस बुक्स भी रेफर किए हैं, सब कुछ है हमारे पास। बट सबसे पहले आप लोगों को रफ आइडिया होनी चाहिए एक्चुअली ये पोस्टुलेट्स क्या है, और उसके बाद में हम एक्चुअल जो कुछ भी स्लाइड्स है उनमें डायरेक्टली मैंने
सॉरी, उनमें मैंने डायरेक्टली आप लोगों को ये सारे के सारे पोस्टुलेट्स अच्छे से वर्ड्स में, सेंटेंस या फिर स्टेटमेंट के वर्ड्स में इंसर्ट कर दिए हैं। बट उससे पहले और एक बार, ये पहला जो पोस्टुलेट होता है, तो पहला पोस्टुलेट होता है डिपेंडेंट ऑन टू अ स्टेट ऑफ अ सिस्टम। किस पर डिपेंड है बेटा? स्टेट ऑफ अ सिस्टम, स्टेट ऑफ अ system. Now you may ask me, ma'am, what is mean by first postulate, or what is mean by state of a system? So state of a system means nothing different. Now whenever, अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आप लोगों को बताती हूँ। whenever we have a particle, whenever we are considering a particle, at that time that particle is moving in its wavy nature, in its wavy nature, मतलब वेव के फॉर्म में वो ट्रेवल करता है। किसके फॉर्म में वो ट्रेवल करता है? वेव की फॉर्म में। अब मैं कैपिटल स्मॉल लेटर कैसे लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ, ये ज्यादा कुछ कंसिडर नहीं कर रही हूँ। तो ये जो कुछ भी पार्टिकल है, तो ये कैसे बिहेव करता है या फिर कैसे ट्रेवल करता है? वेव के नेचर में। अब वेव के नेचर में वो ट्रेवल करता है, मतलब ऐसे वो ट्रेवल करता होगा, यस और नो? तो अब ये जब कभी भी वेव के नेचर में ट्रैवल करता है, मतलब कि फॉर एग्जांपल सपोज आपका वेव के नेचर में करता है, बट अगर से आप बोलो कि आपका ये वुडन वुडन का एक खदा वुडन है, वुड है, हाँ, और वहां से आपका एक पार्टिकल मूव होने को है। अब वो मूव होते हुए कैसे मूव करेगा? ऐसे जाएगा। अब ये जब जा रहा है, तब आप लोगों को एक चीज समझ में आ रही होगी, और वो चीज मतलब क्या? इट इज मूविंग टुवर्ड्स ओनली वन डायरेक्शन, इट इज मूविंग टुवर्ड्स ओनली वन डायरेक्शन, एटलीस्ट जस्ट नाउ। मतलब अभी तो ये एक ही डायरेक्शन की तरफ मूव कर रहा है, और सीधे सीधे वो मूव कर रहा है, मतलब सिंपली हम बोल सकते हैं एक्स एक्सिस की तरफ, या फिर आप उसको बोल सकते हो, आप उसको बोल सकते हो इट इज मूविंग टुवर्ड्स एक्स एक्सिस। अब इफ इट इज मूविंग टुवर्ड्स ओनली एक्स एक्सिस, एंड एंड जैसे कि आप लोग कंफ्यूज हो सकते हो कि मैम सिर्फ एक्स एक्सिस की तरफ वो मूव होता है क्या, उसे वाई और जेड एक्सिस पसंद नहीं है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपके ये जो कुछ भी पार्टिकल्स है, तो ये पार्टिकल्स कैन मूव, these particles can move towards towards y axis, z axis, any axis. It can move towards any axis. Now ab it means that on this data or on this basis you can explain whatever this particle is there, it can be move, it can move towards x axis, towards y axis, or towards z axis, with reference to what, my dear students? With respect to time. And ये जो कुछ भी इंफॉर्मेशन होगी, ये इंफॉर्मेशन सपोज पहले हम वन डायमेंशनल के लिए कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए इट मे मूव टुवर्ड्स एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, बट इट विल बी completely depend if completely explain on the basis of time। मतलब अब एक्स एक्सिस पर मूव हो रहा है, पर आफ्टर सम टाइम वो कहाँ पर पहुंचा? वाई एक्सिस पे मूव हो रहा है, तो आफ्टर सम टाइम वो कहाँ पर पहुंचा? अपने आपका पार्टिकल का जो कुछ भी ट्रैवलिंग है, वो ट्रैवलिंग कहाँ तक पहुंची, ये सब कुछ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं ऑन द वे। एंड वॉट एवर दिस ऑल द डेटा और ऑल द इंफॉर्मेशन वी आर एक्सप्लेनिंग, इट इज फॉर साइ, मतलब कि आपकी वेव के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम ऐसे दे सकते हैं। अब आप मुझे पूछोगे मैम ठीक है ये वन डायमेंशनल में आप बोल रहे हो, बट हमने ऐसा कभी तो सुना था कि थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट भी होती है, थ्री डायमेंशनल में फिर वो मूव नहीं हो सकते क्या? तो बोल रही हूँ कि आपका ये जो कुछ भी मैटर है, तो ये मैटर मतलब कि यही पार्टिकल अगर से अब आप लोगों को रखना है, अब अगर से आप लोगों को उसको रखना है थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट में। कैसे माय डियर स्टूडेंट्स? थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट में। थ्री डायमेंशनल अरेंजमेंट में मतलब क्या होगा? अब मतलब सपोज इफ इट इज मूविंग from like this distance in this in this box, but it cannot move outside of this cube, outside of this cube. Why? Because we have taken here cube, because it is explaining us
x axis, y axis, z axis, and it is very well known to you, all of you guys, because all these things you have learned in solid state chemistry. कैसे वो एक्सिसेस होते हैं, कैसे क्रिस्टलोग्राफिक एक्सिसेस होते हैं, कैसे वो मूव करते हैं, कौन कौन से एक्सिसेस होते हैं, तो वैसे ही सिर्फ हम वो एक पार्टिकल ले रहे हैं और उसको मूव करा रहे हैं हमारे इस 3 डायमेंशनल क्यूब में। अब ये जो कुछ भी हमारा क्यूब है, तो ये क्यूब, अब बात आती है कि मैम ठीक है, अब 3 डायमेंशनल में है ना, तो फिर 3 डायमेंशनल में हम लोग कैसे एक्सप्लेन करें कि हमारा ये जो कुछ भी, अब हमारा ये जो कुछ भी साई होगा तो इट इज मूविंग नाउ। अब आप लोग कंफ्यूज मत हो, अब मैं एक बात बता रही हूँ आप लोगों को। व्हेन इट इज मूविंग टुवर्ड्स 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट, देन इफ यू नो वेरी वेल, इट वाज रफ, इट वाज मीन्स, वेट अ मिनट, इट वॉज मीन्स दिस वॉज इन जनरल, हम कंसिडर कर रहे थे एक्स एक्सिस भी हो सकता है, वाई बी जेड भी, बट अगर से अभी फिक्स है कि इट इज मूविंग टुवर्ड्स एक्स एक्स एक्सिस ओनली, देन 1 डायमेंशनल में उसको कैसे रिप्रेजेंट करोगे? साई, साई ऑफ एक्स कॉमा टी। मतलब क्या? इस मैटर की, इस पार्टिकल की जो कुछ भी साई होगा, वो साई मतलब कि वेव फंक्शन, वो फिक्स हो गया है, अभी एक्स एक्सिस की तरफ वो मूव होता है विथ रेफरेंस टू द टाइम, एंड नाउ यू कैन एक्सप्लेन दैट इज साई ऑफ एक्स एंड एक्स कॉमा टी। मतलब वो एक्स एक्सिस की तरफ मूव हो रहा है विथ रेफरेंस टू द टाइम। अब आप लोग मुझे पूछोगे मैम अब हमें बोलो कि हाउ कैन वी गिव इट फॉर 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट। अब आप लोग मुझसे अच्छा बोलोगे, अगर साई है और एक ही एक्सिस है, तो एक्स कॉमा टी दिया है, तो हम 3 डायमेंशनल में कैसे देंगे? सिंपली, इज इट लाइक साई ऑफ एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड comma t, yes or no? And this is nothing but a state function, or you can say this is nothing but a state of a system। मतलब कौन सी स्टेट में आपकी सिस्टम है, ये हम अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एंड दिस इज नथिंग बट द वेरी फर्स्ट वन postulate of our quantum mechanics। I think you guys are clear up to this. If yes, then it's good. If no, then please go and watch the recording till the time. Okay, and then continue for the second, third, fourth, fifth, and sixth, all left postulates. Now, whatever the next थिंक इज दिया विच इज रिगार्डिंग, अब है ना, मैं पहले आप लोगों को समझाती हूँ, उसके बाद में एक पोस्टुलेट बताती हूँ। हाँ, ये पोस्टुलेट ऐसा है, वो पोस्टुलेट ऐसा है। अब कुछ देर के लिए अच्छे से ध्यान दो। ओके, तो अब मुझे जो बात बतानी है, अब ये तो हो गया हमारा साई मतलब कि वेव फंक्शन है, और उसका साई स्क्वायर मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। बट आप लोग मुझे पूछोगे कि मैम आप बता रहे हो कि साई स्क्वायर मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, साई स्क्वायर मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, बट अब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी मतलब क्या मैम? प्रोबेबिलिटी मतलब क्या? प्रोबेबिलिटी इज नथिंग बट फाइंडिंग ऑफ एन वेव, फाइंडिंग ऑफ अ वेव। अब फाइंडिंग ऑफ अ वेव मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, तो सब एक्सप्लेन करती हूँ। बट उससे पहले ये जो कुछ भी अब प्रोबेबिलिटी है, अब ये जो कुछ भी प्रोबेबिलिटी है आपके वेव के मिलने की, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग अ वेव, probability of finding a wave, this probability is equals to, this probability is equals to, simply ये जो कुछ भी probability होती है, this probability is equals to, probability of finding is equals to, you can say that probability finding या फिर probability density हम कैसे देते थे? साई स्क्वायर से, तो साई स्क्वायर इनटू dx। अब 1 डायमेंशनल के लिए पढ़ रहे हैं तो मतलब dx ना, यहाँ पर कंफ्यूज मत हुआ, ये स्मॉल x मतलब क्या, वो कैसे कहाँ पर मूव हो रहा है, मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है, वो कौन से डिस्टेंस के साथ मूव हो रहा है, तो उसका चेंज, उसका डिस्प्लेसमेंट
एलिमेंट बोलना है मुझे, तो इसलिए हम उसको बताते हैं dx। अब आपको अगर से प्रोबेबिलिटी डेंसिटी देनी है तो आप क्या कर सकते हो, इसी इक्वेशन को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हो, दैट इज probability density means psi square, probability density means psi square is equals to probability upon dx। नाउ गाइज, अब पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी वर्ड लिखने की बजाय मैंने सिर्फ p लिखा है, तो कुछ देर के लिए यहाँ या फिर PRO लिखती हूँ, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी समझ लो। अब प्रोबेबिलिटी अपॉन dx, प्रोबेबिलिटी अपॉन dx, ये क्या हो गया अभी, दिस, wait a minute, this probability, this size square is equals to probability upon dx is nothing but a probability per unit distance। What I told you, this is size square is nothing but probability, this whole box is nothing but यहाँ पर नीचे लिखती हूँ प्रोबेबिलिटी पर यूनिट डिस्टेंस। अगर से बोलो आप लोग देखो, अगर इस पर एमसीक्यूज आते हैं ना, तो कैसे कैसे एमसीक्यूज आते हैं वो भी बोलती हूँ। प्रोबेबिलिटी पर यूनिट डिस्टेंस, what is this, probability per unit distance, what is this beta, probability per unit distance। What is this box, psi square means probability density, and whatever this probability density is there, that is equals to probability upon dx। and वो दूसरा को तीसरा कुछ नहीं, इसी इक्वेशन का आपका रीअरेंज्ड फॉर्म है। अब हो गया ये प्रोबेबिलिटी पर यूनिट डिस्टेंस हो गया। बट आप लोग मुझे पूछोगे कि मैम बट अगर से आप, ये तो हो गया ठीक है, बट कैसे फाइंड आउट करें हम, अगर से समझो एक बॉक्स है तो उसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो उसको भी एक्सप्लेन करती हूँ। वेट अ मिनट, आप लोगों को अब क्या करना है, आप लोगों को एक डाउट आया है, क्या डाउट आया है, तो अब वो डाउट मतलब दूसरा तीसरा कुछ नहीं, तो वो क्या होगा, सिंपली समझ लो। अभी ये अगर से आपका यूनिट सेल है, अब अगर से समझो ये आपका यूनिट सेल है। अब इस यूनिट सेल में, अब यहाँ पर मतलब कि ये आपका जो कुछ भी पार्टिकल था, जैसे कि ये मूव हो रहा था, बट मूव हो रहा था, तो अब इस यूनिट सेल बोलने की बजाय इस क्यूब में बोलूंगी मैं, क्योंकि अभी सॉलिड के वर्ड्स हम यहाँ पर नहीं ला सकते, क्योंकि हर एक ब्रांच को उसका उसका वेटेज है। तो अब ये क्या है, एक स्पेशल 3 डायमेंशनल क्यूब है। तो इस 3 डायमेंशनल क्यूब में, या फिर 3 डायमेंशनल क्यूब बोलने की जगह हमें बोलना होगा एक एक है, समझो इस कॉर्नर को 20% हो सकती है, इस कॉर्नर को 20%, इस कॉर्नर को 20%, इस कॉर्नर को 20%, बट टोटल बॉक्स की जो कुछ भी प्रोबेबिलिटी होगी वो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ऑब्वियसली मतलब इस बॉक्स में वो 100% तो मिलना ही मिलना है, बट उसको उसको मतलब ये जो कुछ भी प्रोबेबिलिटी है, ये प्रोबेबिलिटी नो डाउट मतलब कि वो मिलना ही मिलना है इस बॉक्स में, 100% तो मिलना ही है उसको, बट 100% मिलेगा, बट कैसे और कहाँ पर, तो बॉक्स में मिलेगा, पर उस बॉक्स में कहीं तो वो ऐसे यहाँ पर 20% हो सकता है, यहाँ पर 20%, यहाँ पर 20%, यहाँ पर 20%, यहाँ पर 20%, मतलब वो कहीं पर भी बॉक्स में हो सकता है, पर पूरे के पूरे बॉक्स में 100% उसकी प्रोबेबिलिटी होगी। मतलब कि अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम हमारे मैथमेटिक्स में से एक टर्म लेते हैं। देखो सब लोगों को मैं एक बात बोल रही हूँ, बिल्कुल भी डरना नहीं है, मैथमेटिक्स आ गया बोल के, जिन लोगों का मैथमेटिक्स नहीं था, मैं बहुत स्लोली जिनका मैथमेटिक्स नहीं था उनको भी उन मैथमेटिकल टर्म्स की तरफ बहुत स्लोली केयरफुली लेके जा रही हूँ। तो अब ये जो कुछ भी डरना बिल्कुल नहीं है। तो अब ये जो कुछ भी आपका क्यूब है, वन बॉक्स है, इस बॉक्स में उसकी प्रोबेबिलिटी 100% है, बट अब इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लेते हैं उसके लिमिट्स, हम लेते हैं मतलब हम उसका इंटीग्रेशन करते हैं, बट इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करने के लिए माय डियर स्टूडेंट्स, इंटीग्रेशन करने के लिए उसके हायर एंड लोअर लिमिट हमें पता होने चाहिए। अब सपोज ये
आपके जो कुछ भी, अब सपोज ये जो कुछ भी आपकी ये पार्टिकल है, सपोज ये यहाँ से शुरू हो गया और यहाँ तक आके रुक गया, मतलब वो स्टार्ट हो रहा है, सपोज फॉर एग्जांपल उसका स्टार्टिंग पॉइंट है ये, ए मतलब स्मॉल ए, अब कुछ तो बताना है इसलिए स्मॉल ए बोल रही हूँ, एंड मैक्सिमम लिटरेचर्स आर यूजिंग स्मॉल ए टू स्मॉल एल, स्मॉल ए टू स्मॉल एल, मतलब क्या बेटा, कहाँ से शुरू हो गया, ए से, कहाँ पर खत्म हो गया, एल, मतलब दिस इज नथिंग बट द लोवेस्ट रेंज, ये कैसी रेंज है, लो रेंज, लो रेंज ऑफ योर इंटीग्रेशन, लो रेंज ऑफ finding probability in a box for your wave, for your what, your wave, बट अभी ये जो कुछ भी लो रेंज है, अब यहां से लेकर के उसकी अपर लिमिट क्या है, एल, उसकी क्या है बेटा, ये अपर लिमिट है। मुझे लगता है ये समझ गए होंगे आप लोग। अब अगर से ये समझ गए होंगे तो अब हमें क्या करना है, पहले क्या करते हैं हम, ये कैसे बता रहे हैं हम, सिंगल यहाँ पर लिया है कि नहीं, ये बॉक्स में हो गया, मतलब कि ये 3D हो गया, और ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब यहाँ पर कुछ बॉक्स वॉक्स दिख रहा है, एक की दिशा की तरफ वो मूव हो रहा है, मतलब एक देते हैं 1 डायमेंशनल की तरफ और दूसरा देंगे हम 3 डायमेंशनल की तरफ। समझ तो रहे हो ना मेरे बच्चों। अब देखो अच्छे से, अब ये जो कुछ भी 1 डायमेंशनल की तरफ टोटल प्रोबेबिलिटी 100%, मतलब पूरा का पूरा प्रोबेबिलिटी, तो टोटल प्रोबेबिलिटी फॉर, क्या बोल रही हूँ मैं, टोटल प्रोबेबिलिटी, क्या बोल रही हूँ मैं, टोटल प्रोबेबिलिटी। अब ये जो कुछ भी टोटल प्रोबेबिलिटी है, क्या है बेटा, टोटल प्रोबेबिलिटी, एंड मैं ना बहुत बड़े बड़े वर्ड्स नहीं लिख रही हूँ, टोटल प्रोबेबिलिटी टुवर्ड्स 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट, टुवर्ड्स क्या बेटा, 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट, एंड दैट इज ऑब्वियसली इक्वल्स टू, सिंपली क्या लिमिट ली थी हमने, इट इज रेंजिंग मींस इट इज इंटीग्रेशन ओवर, कैसे बताते हैं हम, इंटीग्रेशन से बताते हैं उसकी लोअर लिमिट अपर लिमिट, तो इंटीग्रेशन ओवर ए, इंटीग्रेशन ओवर ओवर ए मींस lower higher, guys are very well known, total probability, क्या total probability of finding, this is nothing आई स्क्वायर, मतलब उसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, अब थोड़ा ना गंदी हैंडराइटिंग आ रही है, बट ये क्या है, साई स्क्वायर इंटू डी एक्स, दिस इज टूवर्ड्स ओनली 1 डायमेंशनल अरेंजमेंट। अब आप लोग मुझे पूछोगे कि मैम फिर 3 डायमेंशनल के लिए कैसे बताए, तो टोटल प्रोबेबिलिटी, अब ना मैं डायरेक्टली लिखती हूँ, हाँ टोटल प्रोबेबिलिटी वो ये लिखती रही हूँ, तो डायरेक्टली दैट मीन्स, अब नहीं लिखती हूँ बोला तो आप लोगों को लगेगा क्या मैं छोड़ रही हूँ, टोटल प्रोबेबिलिटी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर क्या से क्या बेटा, ए बॉक्स है, अब इस बॉक्स में ए टू एल लिमिट है उसकी भी, मतलब कि समझ लो यहाँ से समझ लो, अब ये जो कुछ भी आपका क्यूब है, ये क्यूब की रेंज भी ए टू एल ही है, समझो, मतलब उसके लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, then after it will become what, psi square into d tau, नीट लक्ष द्या, d tau, d tau, d tau, d tau. Now you may ask me, ma'am, okay, we are clear with this probability towards 1 dimensional, but now you should write, ma'am, dx, dy, dz, why you didn't, तो बताती हूँ, डी टाउ का ही मीनिंग होता है dx dy और dz, डी टाउ दूसरा तीसरा कुछ नहीं, तो क्या होता है, डी टाउ जहां पर भी आता है, अब ये टी जैसा ऐसा आड़ा टेढ़ा जैसा लिखा है ना, मैंने यहाँ पर लिख रही हूँ, हाँ? तो ऐसा मतलब ऐसी रुको, हाँ अच्छे से निकालती हूँ और एक बार, जिसकी वजह से मतलब जिससे कि आप कंफ्यूज ना हो, टो, इसको क्या बोलो, टो, हाँ, तो डी टो जो होता है वो डी टो इज नथिंग बट
towards x, y and z, and this is nothing but the d tau. अब यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ योर वेव। अब इसके बाद में आप लोग मुझे पूछ सकते हो कि मैडम अपर लिमिट लोअर लिमिट जो ले, अब मुझे लगता है यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब अगर से समझ में आ गया होगा तो मैं अब मूव करती हूँ नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जिसमें कि मुझे आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट सी चीज बतानी है, इसी चीज पर डिपेंड है, बट ये पूरा का पूरा बोर्ड भर गया है, इसलिए मैं क्या कर रही हूँ, सिंपली दूसरी स्लाइड लेके, दूसरा व्हाइट बोर्ड लेके बताती हूँ आपको। ओके, तो हाँ, तो अब देखो, हाँ यहाँ पर अब एल लिमिट तक, वेट 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 वेट, हाँ से कहाँ तक ले रहे हैं हम, लोअर लिमिट ए से लेकर के अपर लिमिट एल तक। अब ये जो कुछ भी आपकी वेव है, तो ये समझ लीजिए अभी हम सीधे सीधे पहले तो क्या करते हैं, एक एक्सिस की तरफ इन जनरल रिप्रेजेंट करते हैं, सिर्फ साइज स्क्वायर, अरे काय झाले, साई स्क्वेअर इंटू dx, and this will be equals to 1, this will be equals to what बेटा, 1। मतलब क्या, मतलब कि कोई भी वेव फंक्शन आपको, कोई भी वेव फंक्शन जब आप लेते हो, तब वो वेव फंक्शन आपको उस वेव के बारे में हर एक चीज बतानी चाहिए। हर एक चीज मतलब क्या, उसकी लोअर लिमिट क्या है, उसकी अपर लिमिट क्या है, एंड वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है। अब आप मुझे पूछोगे कि मैम को अब या एक्सेप्टेबल नॉन एक्सेप्टेबल मतलब क्या, ऐसा भी होता है क्या कि कोई वेव एक्सेप्टेबल होती है, कोई वेव नॉन एक्सेप्टेबल होती है? तो यस, एंड दैट इज व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग नाउ। मतलब क्या, अगर से समझ लो ए पॉइंट से लेकर के एल पॉइंट तक, कहाँ से कहाँ, ए से लेकर के एल तक, अब समझ लो ऐसे आप लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट मतलब 20-20% दे रहे नहीं थे क्या अभी क्यूब मतलब बॉक्स में, वैसे ही अब ये क्या है, वन डायमेंशनल की तरफ, मतलब वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक मूव हो रहा था। तो अब यहाँ से यहाँ तक मतलब ये जो कुछ भी उसकी प्रोबेबिलिटी है, मतलब ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो वो दिख रहा था मतलब मूव हो रहा है। तो अब देखो यहाँ से यहाँ तक वो मूव हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, मतलब कि उसका जो कुछ भी फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है वो साई स्क्वायर इंटू डी एक्स है। अब ये जो कुछ भी साई स्क्वायर इंटू डी एक्स है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक उसका फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू 1, एंड व्हेन इट इज इक्वल टू 1, when it is equal to 1, then this type of wave function is called as normal wave function and it is acceptable। अच्छे से सुनो, normal wave function and it is acceptable। but बट अगर से अब मतलब ये पूरे का पूरा, ये अभी इस पार्ट में कितना होगा, इस पार्ट में कितना, इस पार्ट में कितना, तो उसकी वो यहाँ से लेकर के मतलब ए से लेकर के एल तक कहीं पर भी उसका फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी मतलब साई स्क्वायर मतलब वो कहाँ पर होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी कहीं पर भी हो सकती है, पर वो कितनी होनी चाहिए, 100%। मतलब दैट शुड बिकेम और दैट शुड बी इक्वल्स टू 1, मतलब वो यूनिटी आना चाहिए, और जब वो यूनिटी आता है तो उसको हम बोलते हैं यस, ये है वेव फंक्शन और ये वेव फंक्शन इज एक्सेप्टेबल। ये वेव फंक्शन कैसी होती है बच्चों, ये वेव फंक्शन इज नॉर्मल एंड एक्सेप्टेबल। बट अब इसी की जगह ना अगर से हम दे कि 10 आ रहा है, साई स्क्वायर इंटू ए से लेकर के एल तक उसका 10 आ रहा है उसका आंसर, मतलब उस फंक्शन का, तो इस वेव फंक्शन को हम बोलते हैं, वो अगर से 10 इतना आ रहा है साई स्क्वायर इंटू डी एक्स, ये जो कुछ भी उसकी अपर लोअर लिमिट हम पुट कर रहे हैं, तो ये अगर से समझो इक्वल्स टू 10 आ रहा है, तो हमें क्या करना होगा, इक्वल्स टू 10 आ रहा है मतलब वो गलत हो रहा है, इक्वल्स टू 10 आ रहा है मतलब वो गलत हो रहा है, गलत हो रहा है मतलब क्या, रुको थोड़ा सा इरेज हो रहा है, हाँ, इज इक्वल्स टू 10।
अब अगर से वो 10 आ रहा है मतलब इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, इट इज नॉट एक्सेप्टेबल, आई मीन टू से इट इज एबनॉर्मल। और एबनॉर्मल का मीनिंग तो आपको अच्छे से पता है, जो कि नॉर्मल ना हो। और इट इज नथिंग बट, ऐसे वेव फंक्शन को जो इक्वल टू 1 नहीं आ रही है, ऐसे वेव फंक्शन को हम बोलते हैं एबनॉर्मल वेव फंक्शन। मतलब कि आप लोगों को इसी पर से एक चीज समझ में आ रही है क्या, कि आपका ये जो कुछ भी साई एंड साई स्क्वायर है, मतलब कि साई मतलब कि वेव फंक्शन है, और उसका साई स्क्वायर मतलब फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी है। ये फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज हैविंग 1 आना चाहिए, मतलब ही क्या, तो दूसरा तीसरा कुछ नहीं, तो ये जो कुछ भी वैल्यू होती है तो वो वैल्यू इज अ सिंगल वैल्यूड फंक्शन। हाउ इट इज, it's a single valued function. How this one is single valued function, how this one is single valued function। कैसे है वो सिंगल वैल्यूड होते हैं, वो कंटिन्यूअस होने चाहिए। अब आप लोग मुझे पूछोगे मैम अब ये सिंगल वैल्यूड है मतलब क्या, मतलब अब ये जो कुछ भी सिंगल वैल्यूड है तो सिंगल वैल्यूड मतलब इट शुड बी इक्वल टू 1, मतलब उसकी वैल्यू अगर से आप बोल रहे हो 1 है तो 1 ही आनी चाहिए। 1 की जगह 2 3 4 5 6 ऐसा 10 ऐसा कुछ भी आ रही है तो वो सिंगल वैल्यूड है क्या, नहीं, उसकी वैल्यू क्या हो रही है, चेंज हो रही है। और ये सारी की सारी चीजें थियरी पैटर्न में अगर से वो पूछते हैं तो आप लोगों को बताने को आप लोग एबल होने चाहिए, कि पूरा का पूरा कंप्लीटली आपको स्टेटमेंट वाइज, मतलब कि मुझे बोलना है पोस्टुलेट नंबर 1, फर्स्ट पोस्टुलेट इज रिलेटेड विद स्टेट ऑफ अ फंक्शन, सेकंड पोस्टुलेट इज रिलेटेड विद अ इट्स अ प्रोबेबिलिटी, देन सो ऑन। हम एक पढ़ रहे हैं। तो अब ये जो कुछ भी पोस्टुलेट्स है तो उनमें पहली चीज, ये जो कुछ भी साई एंड साई स्क्वायर होते हैं, मतलब कि साई मतलब वेव फंक्शन, ये जो कुछ भी उसके फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी होती है तो वो कैसी होनी चाहिए, सिंगल वैल्यूड। कैसी होनी चाहिए बच्चों, सिंगल वैल्यूड, मतलब उसके वैल्यूज चेंज होने चाहिए क्या, बिल्कुल भी नहीं। अब बात आती है कि साई शुड बी कंटिन्यूअस, साई शुड बी कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस मतलब कि वो कहीं तो कैसे तो डिस्टर्ब, मतलब बोलती हूँ, या फिर रुको 1 मिनट, मुझे थोड़ा सा यहाँ पर रब करना होगा मैटर, 1 मिनट रुको। हाँ, अब ये साई को हमें एक्सप्लेन करना है, साई को एक्सप्लेन करना है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर से ये जो साई है, ये साई मतलब कि वेव मूव हो रही है आपकी, तो ये वेव कैसे मूव होनी चाहिए, कंटिन्यूअसली ये वेव मूव होनी चाहिए, और ये जो होती है इसे हम बोलते हैं साई, इसे हम बोलते हैं साई। एंड दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन, और दिस इज नथिंग बट द साई व्हेन साई इज इक्वल्स टू साइन एक्स, साइन साइन एक्स, मतलब कि साई व्हेन साई इज इक्वल्स टू साइन एक्स, देन एक्सप्लेन और देन टेल अस कैसे होगी आपकी साई का प्रोपोगेशन, या फिर कैसे बताते हो आप साई को, तो ऐसे बताते हो आप साई को, जब उसका साई को बताते हो जब वो साइन एक्स होती है, बट साइन एक्स के बजाय अब साइन एक्स जब होता है तब ऐसे, बट ये अगर से वो पूछे कि साई इज इक्वल्स टू माइनस साइन एक्स, तो अब माइनस मतलब कि ये सब उल्टा हो गया, मतलब क्या, ऐसे 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 अब आपकी साइन एक्स होगा, मतलब दिस इज द साई वैल्यू व्हेन यू कैन रिप्रेजेंट इट फॉर माइनस साइन एक्स। एंड नाउ व्हेन you have this sign x value at that time, this will be always positive, this will be always positive. But when you have, sorry, ah when you have this psi, then you have a continuous wave function. And now if you go towards, my dear students, if you go towards साई स्क्वायर, मतलब कि एग्जाम में अगर से वो आपको पूछे कि साई कैसा होगा साइन एक्स का, तो ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम साई के बारे में। बट अगर से साई स्क्वायर वो पूछे, तो रुको मुझे थोड़ा पार्ट रब करने दो यहाँ का, जिससे कि मैं आपको साइन स्क्वायर भी बता सकूं।
देखो, हाँ, साइन स्क्वायर नहीं, गलती से मुंह टंग से स्लिप हो गया, साई स्क्वायर बोलना था मुझे। साई स्क्वायर मतलब उसके फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, तो इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। इट विल बी ऑलवेज कैसी होती है बेटा? पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि अगर से इस साई की वैल्यू निगेटिव भी हो गई, फिर भी क्या होगा? साई का क्या है? स्क्वायर है। साई का स्क्वायर मतलब निगेटिव, निगेटिव का स्क्वायर मतलब निगेटिव, निगेटिव विल गेट पॉजिटिव। हाँ, साई इंटू साई विल गेट पॉजिटिव। अगर से वो निगेटिव हो भी गई तो पॉजिटिव होगा, तो कुछ डाउट ही नहीं है। बट निगेटिव, निगेटिव मतलब वैल्यूज होंगे उसके, -1 वैल्यू अगर से हो गए आपके साइड की, तो क्या होगा? -1 इंटू -1, हाउ मच इट विल बी इक्वल टू? इट विल बी इक्वल टू ऑब्वियसली +1। मतलब क्या है? उसकी वैल्यू इज इक्वल टू प्लस, मतलब पॉजिटिव, एंड दिस इज नथिंग बट द साई स्क्वायर। इट विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। हाँ, अब अब आपकी साई, अगर से आप लोग ना, यहाँ पर ही मैं बताती हूँ, हाँ, यहाँ इसको मेट के थोड़ा बताती हूँ। अब ये जो कुछ भी आपका साई स्क्वायर है, इस साई स्क्वायर को, इस साई स्क्वायर को अगर से आप ऐसे यहाँ पर एक साई स्क्वायर का मतलब साई स्क्वायर बता रहे हो, अब साई स्क्वायर बता, शिट, अब ये जो कुछ भी आप साई स्क्वायर बता रहे हो, अब ये साई स्क्वायर प्लस है, अब यहाँ पर एक गैप हो गया, फिर यहाँ पर ऐसा डिसकंटिन्यूअस हो सकता है कि आपके फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी, मतलब वो बोलता है क्या, अभी मुझे बोर हो रहा है, थोड़ा सा मैं बॉक्स के बाहर जाके घूम के आता हूँ, ऐसा पॉसिबल है क्या? इट विल नॉट बी पॉसिबल। वो साई मतलब वेव फंक्शन, वो ऐसे कभी भी नहीं बोल सकते कि आई एम गेटिंग बोर, थोड़ा सा गाने सुनता हूँ या फिर सुनती हूँ, या फिर थोड़ा सा अभी चिल करते करते हैं, बाद में पढ़ते हैं, जैसे कि आप बोर होते हो तो थोड़ा सा कुछ करते हो आपके मर्जी मुताबिक, या फिर थोड़ा गैप लेते हो, थोड़ी सी एक आधी पावर नैप लेते हो, ऐसा कुछ पॉसिबल है क्या? बिल्कुल भी नहीं। एंड दिस इज नथिंग बट द मीनिंग ऑफ दिस इज साई। मीनिंग ऑफ दिस इज साई, और साई स्क्वायर मतलब कि मुझे बोलना है वेव जो कुछ भी होगी वो कंटिन्यूअस होनी चाहिए। वो डिसकंटिन्यूअस हो सकती है क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर से वो डिसकंटिन्यूअस होगी तो वो वेव एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। अब यह हो गया सारा का सारा पार्ट आपके पोस्टुलेट से रिलेटेड। अब मैंने सारे पोस्टुलेट्स आप लोगों को स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिए हैं। अब यहाँ पर एक चीज मैंने जो रफली नहीं बताई है, आइजन वैल्यू, आइजन फंक्शन, ऑपरेटर, तो वो सारी चीजें मैं बताती हूँ स्लाइड की हेल्प से। अब आप लोग मुझे बोलो, मैम ये ऑपरेटर वर्ड क्या होता है? बाबा बहुत बार सुन रहे हैं हम आपके मुंह से, ऑपरेटर ऑपरेटर ऑपरेटर। देखो बच्चों, मैंने बोला था, अगर से आपने बेसिक क्लासेस नहीं किए हैं क्वांटम के, तो जाके एक बार फास्टली देखो, उसकी स्पीड बढ़ा के देखो लगा तो, बट देखो जरूर, कर लो वो क्लास, क्योंकि वहां पर मैंने आप लोगों को बोला था कि ये जो कुछ भी साई मतलब कि आई मीन टू से ये वेव होती है, तो ये वेव आपकी जो कुछ भी होती है, तो ये वेव मतलब कि क्लासिकल मतलब कि ये वेव इन क्वांटम मैकेनिक्स इट इज ऑफ माइक्रो लेवल, माइक्रो फॉर्म। ओके, माइक्रो फॉर्म में होते हैं, बट क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या होता है उसका, वो उनको एक्सप्लेन करने के लिए आपके पास में फॉर्मूलाज होते हैं, बट क्वांटम में आपके पास कुछ फॉर्मूलाज होते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। अगर से वहां पर फॉर्मूलाज नहीं होते हैं तो आप कैसे एक्सप्लेन करते हो? बाय यूजिंग ऑपरेटर। बाय यूजिंग क्या? ऑपरेटर। अब आप लोग मुझे पूछोगे, मैम अब ऑपरेटर मतलब क्या? ऑपरेटर मतलब जिस पर से कि आप वेव के बारे में इंफॉर्मेशन एक्सप्लेन कर सकते हो, उसको आप बोल सकते, मतलब आपके वेव के बारे में सारी इंफॉर्मेशन आप जब एक्सप्लेन करते हो तो उसको आप बोलते हो ऑपरेटर। अब आप बोलोगे, मैम कौन से ऑपरेटर होते हैं फिर? सारा का सारा ये मैं चीज आपको एक्सप्लेन करने की वाली हूँ, सारी की सारी ये बातें मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ आपको, बट ये एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आप लोगों को कुछ स्लाइड्स बताने होंगे, तो वो स्लाइड मुझे लोड करने दो पहले। हाँ, वेट करो। मुझे पता है क्लास थोड़ा लेंथी हो रहा है, बट आप लोगों को सारा एक ही क्लास में मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ।
पहले क्या करती हूँ, पोस्टुलेट नंबर 1 2 3 आप पढ़ लो, उसके बाद में ये ऑपरेट, ठीक है, 1 मिनट में पहले ऑपरेटर की स्लाइड दे देती हूँ आपको। देखो मतलब क्या, ये जो कुछ भी ऑपरेटर्स होते हैं, तो ये ऑपरेटर्स क्या क्या हो सकते हैं, ऑपरेटर कैन बी ऑफ टाइप मोमेंटम। मोमेंटम कैसे बताते हैं हम, एम इंटू एच क्रॉस। अबे एच क्रॉस क्या होता है, उसके लिए ऑपरेटर क्या यूज करते हो, आई एच का डो बाय डो एक्स, मतलब सिंबल क्या यूज करते हो इस ऑपरेटर के लिए, पी कैप एक्स, ऐसा पी, हाँ बताती हूँ, ऐसा पी, और उसके सिर पे ऐसा ये जो रखते हैं ना हम, उसे बोलते हैं कैप। हाँ, हमारे सिर वाली कैप नहीं, तो ये ऑपरेटर के सिर पर कैप होती है, ये हमें किसके बारे में बताती है, तो वो क्वांटिटी वेक्टर है, वो क्वांटिटी वेक्टर है, उसके बारे में बताती है ये कैप हमें। हाँ, तो एक बार ये स्लाइड अच्छे से पढ़ लेना। अब आप लोग ना मुझे पूछोगे मैम एक ही है क्या ऑपरेटर, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर बहुत सारे ऑपरेटर है। जैसे कि आप एनर्जी के लिए, मतलब फिर वो अब पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम ई कैप यूज करते हैं, पोटेंशियल एनर्जी के लिए ई कैप, अब पोजीशन के लिए एक्स कैप, काइनेटिक एनर्जी के लिए ई कैप, कैपिटल ई कैप, उसके बेस को काइनेटिक एनर्जी, और उसके बेस को पोटेंशियल लिखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी वाला ऑपरेटर। और अब अगर से आप ऑपरेटर यूज करना चाहते हो, सारी की सारी एनर्जी अगर आपको एक्सप्लेन करनी है, तो आप एच कैप से ये बताते हो। अब एक बात आप लोगों को यहाँ पर बता होनी बहुत जरूरी है कि ये सारे के सारे जो ऑपरेटर्स है ना, वो हम वन डायमेंशनल केसेस में यूज करते हैं। कौन से केसेस में यूज करते हैं, वन डायमेंशनल अरेंजमेंट या फिर वन डायमेंशनल केस के फॉर्म में हम ये ऑपरेटर्स यूज करते हैं। ओके, अब अगर से आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, तो अब हम एक्चुअल हमारे जो कुछ भी पोस्टुलेट्स हैं उनकी तरफ पढ़ते हैं। मतलब ये भी पोस्टुलेट ये है, बट मैंने बोला था ना कि स्टेटमेंट के फॉर्म में आप लोगों को, अगर वो थ्योरी फॉर्म में पूछते हैं तो आपको कैसे एक वन बाय वन बताना है, और अगर से वो एमसीक्यू में पूछते हैं तो कैसा होगा, साइज शुड बी सिंगल वैल्यूड कंटिन्यूअस, ऐसे ऑप्शंस आपको देते हैं वो लोग। ऑप्शन ए में देंगे साइज शुड बी कंटिन्यूअस सिंगल वैल्यूड, डिसकंटिन्यूअस डबल वैल्यूड, सिंगल वैल्यूड बट डिसकंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूअस बट डबल वैल्यूड, मतलब ऐसे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस वो लोग मतलब तैयार करेंगे और आप लोगों को क्वेश्चन पूछेंगे। बट इससे आप लोगों को आपका जो वेव होगा, वो वेव मतलब कि साई, वो जो कुछ भी साई होगी वो कैसी होनी चाहिए, सिंगल वैल्यूड और कंटिन्यूअस, सिंगल वैल्यूड और कैसी होनी चाहिए, कंटिन्यूअस। एंड ये सब कुछ के बारे में एक्सप्लेन करने के लिए अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ कुछ पोस्टुलेट्स। अब अच्छे से देखो, मैंने ये सारी की सारी चीजें बोली थी, देखो। हाँ, अब आप लोग बोलोगे यस मैम, यू एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग विच यू आर शोइंग अस हियर नाउ। मतलब क्या, देखो ये है हमारा पहला पोस्टुलेट, तो आप लोगों को यहाँ पर समझ में आएगा कि क्या, बताती हूँ। हाँ, ये पोस्टुलेट नंबर 1 किसके बारे में बोल रहा है, देखो, स्टेट ऑफ अ क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल इज कंप्लीटली स्पेसिफाइड बाय वेव फंक्शन साई ऑफ एक्स कॉमा टी। मतलब मैंने बोला था वन डायमेंशनल की तरफ ऐसे देते हैं, और जो कुछ भी ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं यहाँ पर तो वन डायमेंशनल। मतलब क्या, अगर से आप लोगों को वन डायमेंशनल की तरफ देना है तो ऐसे, बट ये क्या है, साई। और अब अगर से साई स्क्वायर, मतलब क्या, साई का स्क्वायर, मतलब साई, साई इंटू x0 t0 इंटू साई, साई स्टार इंटू x0 t0 इंटू साई x0 t0 इंटू dx, इंटू क्या बेटा, dx। दिस इज फॉर व्हाट, योर वन डायमेंशनल। बट अब मुझे बोलो, टू डायमेंशनल के लिए भी आप दे सकते हो कि नहीं ये साई का वैल्यू, यस, व्हाट इज दैट, इंटीग्रेशन ओवर 0 टू l एक्स साई स्क्वायर इंटू डिटाओ, या फिर अगर से थ्री डायमेंशनल की तरफ जब देते हो आप डिटो। हाँ, एक चीज मैं भूल गई थी, सॉरी, वहां पर ये जो डिटो होता है ना, ये डी और टाउ होता है ना, इसको हम बोलते हैं वॉल्यूम एलिमेंट। इसको क्या बोलते हैं, वॉल्यूम एलिमेंट। इससे पहले एक बार एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आया था, व्हाट इज डी टाउ इन योर वेव फंक्शन। सो डी टाउ इज अ वॉल्यूम एलिमेंट। वॉल्यूम एलिमेंट मतलब क्या, वो एक्स वाई जेड कौन से एक्सिस की तरफ कैसे कहाँ पर कितना मूव होता है, कैसे उसकी अरेंजमेंट होती है, उसे हम बोलते हैं वॉल्यूम का एलिमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, वॉल्यूम
एलिमेंट। अब आप लोगों को पहला पोस्टुलेट समझ में आ गया होगा। अब अगर से वो समझ में आ गया होगा तो हाँ, तो अब हम चलते हैं सेकंड पोस्टुलेट की तरफ। अब सेकंड पोस्टुलेट किससे रिलेटेड है? तो अभी अभी मैंने बोला था आप लोगों को, अभी अभी मैंने एक स्लाइड एक्सप्लेन की थी आप लोगों को। क्या थी वो स्लाइड? दूसरी तीसरी कुछ भी नहीं, बल्कि वो स्लाइड हमें बता रही थी, वो स्लाइड हमें बता रही थी इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द ऑपरेटर। मतलब क्या? ये जो कुछ भी पोजीशन, मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, इन सारों को एक्सप्लेन करने के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं क्वांटम केमिस्ट्री में, जिसको कि हम बोलते हैं ऑपरेटर। क्या बोलते हैं बच्चों? ऑपरेटर। और अब इसके बाद में बात आती है पोस्टुलेट नंबर 3 की। तो अब ये जो कुछ भी आपके ऑपरेटर होते हैं, उन ऑपरेटर को जो कुछ भी उसके ऑब्जर्वेबल वैल्यूज होते हैं, तो वो वैल्यूज को एक्सप्लेन करने के लिए आप इन ऑपरेटर्स को एक्सप्लेन करने के लिए आप क्या देते हो? सिंपली आप उनको मेजर करते हो आइगन वैल्यूज में। आइजिन भी बोल सकते हो आप, आइगन भी बोल सकते हो, बस उसका साइलेंट प्रोनाउंसिएशन करो। जनरली स्टैंडर्डली प्रोनाउंसिएशन में आइगन वैल्यू बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? आइगन वैल्यू। व्हाट इज दैट बेटा? आइगन वैल्यू इज यूज्ड। मतलब क्या? अब बोलती हूँ पहले तो ये पोस्टुलेट क्या है। ये पोस्टुलेट सिंपली it is related with a eigenvalue। मतलब क्या? if any single measurement of the observable that corresponds to the operator a cap, the only values will ever be measured are the eigenvalue for the operator। मतलब क्या? this can be explained by using the eigenvalue। मतलब ये ऑपरेटर आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो? तो आइगन वैल्यूज की हेल्प से। किसे एक्सप्लेन कर सकते हो? आइगन वैल्यूज की हेल्प से। ओके, आप लोगों को अब मुझे लगता है 3 पोस्टुलेट्स क्लियर हो चुके होंगे। अब हो गए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हो गए होंगे तो स्टॉप द रिकॉर्डिंग एंड वॉच इट वेयर फ्रॉम यू आर नॉट गेटिंग। बहुत इजी है, बट ये इस पर से जो एमसीक्यूज आने वाले हैं वो थोड़े ट्रिकी होंगे। और अगर से ये सारा चीज आपको समझ में आ रही है ना यहाँ पर, तो आप लोग क्वांटम को ऐसे उंगलियों पर नचा सकते हो, क्योंकि ये सब कुछ आप लोगों को इजीली ये बेसिक क्लियर हो रहा है। तो डिफिकल्ट डिफिकल्ट पार्ट जो इस पर डिपेंड है वो अच्छे से समझ में आएगा, आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाओगे। ओके, अब इसके बाद में मैं एक स्लाइड लोड कर रही हूँ फॉर द कितने हैं हम, क्यों लोड कर रही हूँ मैं ये स्लाइड? क्योंकि पोस्टुलेट्स कितने हैं? 6। और कितने हो गए अब हमारे? सिर्फ 3। अब अब बात आती है पोस्टुलेट नंबर 4, 5 एंड 6 की। तो ये सब बोलती हूँ, बट उससे पहले अब ये जो कुछ भी फोर्थ पोस्टुलेट है, तो ये फोर्थ पोस्टुलेट इज एक्सप्लेनिंग अस information of a state of a system means सिंपली ये जो कुछ भी ऑब्जर्वेबल होते हैं, स्टेट ऑफ सिस्टम मतलब आप लोग में भी कंफ्यूज हो सकते हो मैम, रुको रुको थोड़ा, क्योंकि हम कंफ्यूज हो रहे हैं, क्योंकि आपने क्या बोला था कि अब ये जो कुछ भी आपका थर्ड फर्स्ट पोस्टुलेट है वो स्टेट ऑफ अ फंक्शन से रिलेटेड है। नो डाउट स्टेट ऑफ अ फंक्शन से फर्स्ट पोस्टुलेट रिलेटेड है, बट ये जो कुछ भी स्टेट है, तो ये स्टेट आपके वेव फंक्शन के बारे में जब आपको एक्सप्लेन करनी है, when you want to explain about your वेव फंक्शन एट दैट टाइम ना, ये जो कुछ भी वेव फंक्शन है, तो ये वेव फंक्शन के जो कुछ भी ऑब्जर्वेबल्स होते हैं और वो जो कुछ भी वेव होती है, तो उनको एक्सप्लेन करने के लिए आप लोग यहाँ पर सिंपली ये जो कुछ भी उसके एक्सपेक्टेड वैल्यूज होते हैं, क्या होते हैं? उनके एवरेज वैल्यूज जो होते हैं, उसको आप ऐसे भी बोल सकते कि उसके एक्सपेक्टेड वैल्यूज हो सकते हैं। तो वो एक्सपेक्टेड वैल्यूज आप कैसे दे सकते हो? तो आप वो दे सकते हो ऐसे सिंपली like this, that is a is equals to integration over lower limit up to upper limit size star into x comma t। वही है यहाँ, बट क्या किया है यहाँ पर देखो बच्चों, सिंपली यहाँ पर उन्होंने क्या किया है बताती हूँ कि आपका ए कैप लिया है, आपका क्या लिया है? ए कैप लिया है।
ए कैप लिया है, मतलब समझ भी रहे हो आप, जो पोस्टुलेट आप लोगों ने पढ़ा था कि यहाँ पर हमें ऑपरेटर एक्सप्लेन करने के लिए हम लेते हैं, तो वो ऑपरेटर एक्सप्लेन करने के लिए मतलब आपकी जो साई है क्या है, साई वैल्यू जो है, मतलब साई स्टार इंटू एक्स कॉमा टी, मतलब अभी वन डायमेंशनल की तरफ हम ये सारा सब कुछ एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो साई स्टार इंटू एक्स कॉमा टी इंटू ए कैप इंटू साई इंटू ए एक्स कॉमा टी इंटू डी एक्स, मतलब क्या, जस्ट ओनली वी हैव एडेड हियर दैट वैल्यू ऑपरेटर, वैल्यू मतलब मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उस पर से डिवाइडेड बाय सिंपल यूर साइज, सॉरी डिवाइडेड बाय, ओहो, सिंपल ईयर दिस साई स्क्वायर वैल्यू मतलब प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी मतलब क्या, प्रोबेबिलिटी मतलब दूसरा तीसरा कुछ नहीं, तो क्या होता है साई स्क्वायर मतलब साई स्टार ऑफ एक्स कॉमा वाई एक्स कॉमा सॉरी टी इंटू साई इंटू एक्स कॉमा टी, मतलब नहीं क्या, कंफ्यूज हो रहे होंगे आप लोग, तो बताती हूँ, साई स्क्वायर मतलब क्या, साई, हाँ साई इंटू साई, अब साई इंटू साई मतलब क्या बच्चों, साई की वैल्यू क्या है, साई इंटू एक्स कॉमा टी, अब साई कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए सपोज पहले के लिए हमने एस्ट्रिक दिया, मतलब कि स्टार दे रहे, इंटू क्या, साई इंटू एक्स कॉमा टी एंड इंटू dx तो है ही हमारे पास, जब हम उसकी प्रोबेबिलिटी देते हैं, फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी देते हैं, तो यही है बस, उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं हम इस पोस्टुलेट की हेल्प से। अब इसके बाद में बात आती है हमारे फिफ्थ पोस्टुलेट की, कौन से नंबर के पोस्टुलेट्स की बच्चों, फिफ्थ पोस्टुलेट्स की, और ये पोस्टुलेट हमें बताता है टाइम डिपेंडेंट स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन, मतलब क्या, सॉरी, सो whatever this postulate is there, this postulate is explaining us time dependent Schrodinger wave equation, तो ये सारा का सारा इक्वेशन हमें डिराइव करना है, जो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जस्ट ओनली अभी याद रखो कि ये पोस्टुलेट हमें स्क्रोडिंजर वेव, ये जो वेव होती है तो ये वेव के स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के बारे में बताता है, किसके बारे में बताता है, स्क्रोडिंजर वेव इक्वेशन के बारे में। और अब लास्ट पोस्टुलेट है, और देखो हाँ, ये ही सारी चीजों को थोड़े अलग वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं, मतलब आप एक बुक में देखा तो आप लोगों को कुछ थोड़ा मैटर अलग लगेगा, बट फाइनली ना सब कुछ यही है। अब मैं ना ये आपको बताने के लिए ना और एक स्लाइड लेती हूँ, जिसमें मैंने शॉर्टकट में पोस्टुलेट्स दिए हैं, तो वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब वहां पर जो उसका एक्सप्लेनेशन है, वो एक्सप्लेनेशन कैसे है देखो, हाँ, बट उससे पहले सिक्स पोस्टुलेट पढ़ते हैं। ये पोस्टुलेट तो मतलब आप लोग पढ़ोगे तो भी आपको समझ में आएगा, वेव फंक्शन ऑफ अ डिस्क्राइबिंग, वेट वेट वेट, व्हाट इज दिस इज नथिंग बट अ postulate number 6, and what it is explaining us, it is explaining us a wave functions describing a many electron system must change sign, means what, be antisymmetric अंडर द एक्सचेंज ऑफ एनी टू इलेक्ट्रॉन, मतलब क्या, दूसरा तीसरा कुछ नहीं, थोड़ा हाई फाई वर्ड्स में दो देते हैं तब आप कंफ्यूज होते हैं, वुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी, अबूत प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, क्या बोलते हैं ये सारे लोग, कुछ दूसरा तीसरा बोलते हैं क्या, नहीं, तो आप लोग पूछोगे मैम दूसरा तीसरा पूछते नहीं है तो क्या पूछते हैं, बताती हूँ, रुको एक मिनट। तो अब ये जो कुछ भी, अब समझ लो पी ऑर्बिटल है तो उसमें पहले इलेक्ट्रॉन सिंगली फिल होने चाहिए और उसके बाद में दूसरे जो कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए वो एंटीसिमेट्रिक मैनर में फिल होने चाहिए, इस ये चीज ऐसी ही होनी चाहिए, दिस इज नथिंग बट द postulate, this is nothing but what, postulate, and whatever these things are, these all the things are known as postulates for quantum mechanics. I think you guys must be pretty clear, and as I promised you, I have second one ppt to explain you in a shortcut way, in a, okay okay, wait a minute, हाँ, वो तो मैं दे ही रही हूँ आपको, बट उससे पहले ना ये, हाँ, यही देखो, यही सब था क्या, देखो अब सिर्फ उसका नंबरिंग चेंज होगा पोस्टुलेट्स का, ओके, देख लो जल्दी से, या फिर आप इसको
मैं अभी इसको शेयर करना स्टॉप करती हूँ, क्योंकि यही है सब कुछ, आपके सारे छह के से पोस्टुलेट्स। अब ना आप मुझे परमिशन दो कि कि ये जो कुछ भी पोस्टुलेट्स है, इनमें एक चीज आपको पता होनी चाहिए। जब वो लोग आपके वेव फंक्शन के बारे में पूछते हैं, और वेव फंक्शन जब भी नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन होगी, मतलब कोई वेव फंक्शन, हाँ एक चीज बताने की रह गई, एक भाई रह गई थी, वो बोल रही हूँ। कोई भी वेव फंक्शन जब नॉर्मल होगी तो वो एक्सेप्टेबल होगी, मतलब उसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड, नॉर्मल वेव फंक्शन। बट वो जब नॉर्मल से थोड़ी अलग बिहेव करती, तो उसको नॉर्मल फॉर्म में लाने के लिए हम जो प्रोसेस करते हैं उसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। और वो नॉर्मलाइजेशन ना हम अरे शिट, अब ये जो कुछ भी वेव फंक्शन है ना, अब ये वेव फंक्शन मतलब समझो साई स्क्वायर इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ओवर ए टू एल, एंड ये जो दे रहे थे हम, दिस इज इक्वल्स टू वन, ऐसा आ रहा था कि नहीं? अगर से ये आता है तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन, एक्सेप्टेबल वेव फंक्शन। बट जब नहीं होती है कोई वेव फंक्शन एक्सेप्टेबल, नॉर्मल नहीं होती, तो उसको नॉर्मल कराने के लिए हम जो प्रोसेस करते हैं उसको हम बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। एंड जब कभी भी ऐसी वेव फंक्शन आती है, ये बात यहाँ पर पोस्टुलेट्स में बताने की नहीं है, बट अगर से एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आता है, जनरली नेट हो, सेट हो, गेट हो, आप लोग अच्छे से अगर से देखोगे ना, तो आज के क्लास पर आपके बहुत सारे एमसीक्यू सॉल्व होंगे। नॉट ओनली नेट, सेट, गेट, but also TIFR, BARC, any exam where you have quantum chemistry and the questions on the basis of postulates. Please try to find those questions, and please um, try to practice all those questions. And now the thing which I want to tell you is, if this value psi square a to integration over a to l psi square into dx is equals to, if instead of this one, if it is becoming zero, then this property or this thing is known as orthonormal. काय म्हणायचं ह्याला? ऑर्थो नॉर्मलाइज्ड। कैसे बोलने का इसको? ऑर्थोगोनल बोलो, नहीं तो फिर क्या बोलूं इसको? ऑर्थो नॉर्मलाइज्ड बोलो या फिर ऑर्थो गोनल बोलो। हाँ, समझ रहे हो? ऑर्थो नॉर्मल, ऑर्थो गोनली बोलो लगा तो, या फिर नॉर्मलाइज्ड। हाँ, अब इसके बारे में हम और भी पढ़ने वाले हैं। बस ये है सब कुछ हमारे पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स। आई नो क्लास बहुत ज़्यादा स्क्रैच हो गई थी। आप लोग जब पढ़ोगे तब मुझे बोलोगे कि मैम क्लास कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये सारे के सारे पोस्टुलेट्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अब मुझे लगता है आप लोगों को पोस्टुलेट्स क्लियर हो चुके होंगे। अब और भी मेरे पास कुछ अच्छे अच्छे पीपीटीज है, बट अब वो पीपीटीज मैं सिर्फ आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ, एक बार देख लो, जिससे कि कुछ कंफ्यूजन ना रहे। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि मैंने बहुत सारे एफर्ट्स लेके ये सब कुछ प्रिपेयर किया है। देखो, ये है हमारा पहला पोस्टुलेट। अब यहाँ पर इस स्लाइड को रोको और ये पढ़ो, तो आप लोगों को यही सब कुछ जो मैंने बड़बड़ की है वही सब कुछ मिलने वाला है। ओके, आप लोग रुका करके देख सकते हो। मैं दूसरी दूसरी स्लाइड बताती हूँ आपको। यह प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है। इसके बाद में बात आती है कैसे आइडियली वो बिहेव करता है। मैंने बोला था ना, वो 100% मिलना चाहिए, कैसा मिलता है, कंटिन्यूअस होता है, यही सारी चीजें वर्ड्स में स्लाइड में मैंने ली थी। अब ये सारा आप पढ़ लोगे तो आप लोगों को, मुझे पता है कि आप लोग बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो। अब ये स्लाइड, मैं स्लाइड्स ना शेयर इसलिए फास्ट फास्ट कर रही हूँ क्योंकि आप लोग उसको रिकॉर्डिंग को स्टॉप करके भी देख सकते हो, इसलिए फास्ट फास्ट में लोड करा के आपको छोड़ दे रही हूँ। नॉर्मलाइज वेव फंक्शन कैसे होता है, क्या होता है,
नॉर्मलाइजेशन की जो कुछ भी क्या बोलते हैं हम कंडीशन होती है वो क्या होती है, यही सब कुछ बताया है, सिर्फ उसको एक पीपीटी की हेल्प से बताने की कोशिश की है। तो ये नॉर्मलाइज्ड एंड अननॉर्मलाइज्ड, मतलब अगर से नॉर्मलाइज हुए फंक्शन नहीं तो उसको नॉर्मलाइज कैसे करें वो बताया है इस स्लाइड में। ये सब कुछ हम पढ़ने ही वाले हैं आगे आगे। और एक चीज हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है, क्या होता है, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर होता है। और वो जो कुछ भी हैमिल्टोनियन ऑपरेटर के बारे में हमें जो कुछ भी बात करनी है ना, तो ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हम सादा अमाउंट में स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन में लर्न करेंगे। हाँ, इसलिए मैंने यहाँ पर उसको हैमिल्टोनियन को ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया उस पर, क्योंकि यहाँ पर भी बताऊंगी वहां पर भी बताऊंगी तो आप लोगों का क्लास का लेंथ बढ़ जाएगा और आप लोग बोर हो जाओगे, इसलिए सिर्फ। एंड बस ये एंगुलर मोमेंटम पर है, मतलब ये ऑपरेटर्स होते हैं तो ये ऑपरेटर्स कैसे क्या होते हैं, बस दिस इज इट which is about simply and simply your quantum mechanical postulates. And now there is one point which is like eigenvalue and eigenfunction. Whenever you have a eigenvalue and eigenfunction, those are important things. When you have eigenfunctions, then you can get there. The eigenfunctions and eigenvalues are obtained on the basis of differential equations. Okay, and whatever these differential equations are there, those differential equations we are going to solve from next class. Just only see here what is mean by eigenvalue, eigenfunction। मतलब एक ऑपरेटर होता है, उस पर एक फंक्शन होता है, तो उसको हम बोलते, एक को बोलते हैं आइगन वैल्यू, इज ऑपरेटिंग ऑन टू ऑपरेंड एंड इट इज गिविंग अस आइगन वैल्यू, आइगन फंक्शन जब फंक्शन करता है तब। ओके, so here I'll stop my class and we will meet in our next class. Thank you so much. Thank you so much everyone. Just be patient while learning quantum chemistry.